This is Sushil from Creative Mind International School. Today I am going to discuss about how can we delete records in a table. So our today's topic is deleting record in a table. How can we delete a record in a table? How can we delete a record in the table? So practically अब मैं बता रहा हूँ आपको कैसे हम लोग टेबल में रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं. So in the last class I have created one database. हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक डेटाबेस क्रिएट किया था, स्टूडेंट डेटाबेस, स्कूल डेटाबेस. दिस इज व्हाट अ डेटाबेस. स्कूल, ये जो है एक डेटाबेस है, स्कूल डेटाबेस. आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में मैंने जब बताया था हाउ कैन वी क्रिएट अ डेटाबेस, तो मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया था जिसका हम लोग नाम दिए थे स्कूल. तो स्कूल इज अ डेटाबेस. जो भी हम लोग डेटाबेस देते हैं वही डेटाबेस, ये जो फाइल बनता है उसका नाम भी वही रहता है. सी द नेम ऑफ द फाइल इज स्कूल. डेटाबेस मैंने स्कूल लिया था तो फाइल का नेम भी स्कूल हुआ. अब राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में गए एंड सी हियर the extent type of the file is .accdb. so this is the extension of the ms access file. ms access file का extension क्या होता है? C. this one is the file extension of ms access document. file extension of ms access document. file extension of ms access. Okay, so this is the file extension of ms access. ms access का file extension है .accdb. this is the file extension of ms access file. ms access file का file extension ये होता है. Now अब मैंने बताया था कि ये डेटाबेस हम लोगों ने क्रिएट किया था, इस पर क्लिक किए. अब देखिए ms access के डेटाबेस ओपन हो गया. स्कूल डेटाबेस है यहाँ पे देखिए, डेटाबेस नेम स्कूल, तो स्कूल डेटाबेस है. अब मुझे स्कूल डेटाबेस में मैंने स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया था. सो अब टेबल में जो रिकॉर्ड है, उसको देखने के लिए क्या करना होगा? टेबल को खोलना होगा, ओपन करना. कैसे ओपन करेंगे? दो व्यू होता है टेबल का. मैंने बताया था आप लोग को लास्ट क्लास में, टू व्यूज आर देयर ऑफ अ टेबल. तो टेबल को हम लोग अगर रिकॉर्ड डिलीट करना है तो पहले टेबल को ओपन करना होगा. कैसे? टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करना होगा, ना कि डिजाइन व्यू में. वी हैव टू टाइप्स ऑफ व्यू, बट वी in order to delete the records in a table you have to open the table in data sheet view. we have to open the table in data sheet view. तो हम लोग टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करेंगे. नाउ सी हियर, दिस इज द टेबल. डेटा शीट व्यू में ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है? जस्ट यू हैव टू डबल क्लिक हियर. सो दिस इज द रिकॉर्ड्स. दिस इज द student tables. So this one is the first record, second record, third record, fourth record, fifth record and sixth record. Likewise lot of records are there. Now see here, suppose I want to delete this record Mahi. So select this record. इस रिकॉर्ड को मैंने सेलेक्ट किया. ठीक है. अब देखिए in the home tab we have a records group. we have a records group. In the home tab, go to records group. In the records group we have a delete option. Click on delete. Now see, जैसे ही मैंने delete option पे क्लिक किया, one dialog box is coming here. You are about to delete one record. So one message is coming in the dialog box that we are going to delete one record. Do you really want to delete this? If you click yes, यहाँ पे देखिए मैसेज, read the message. If you click yes, you won't be able to undo this delete option. Are you sure you want to delete this record? You want to really delete this record? Yes or no? If you click on yes, the record will be deleted. If you click no means here delete record is still here. If you click on now, again click delete. Now same dialog box is coming. If you click on yes, what happens? This record will be deleted. Now there is no Mahi record still. Mahi का record नहीं है. Suppose I want to delete the Divyanshi Verma records. Now select this record.
Now in the home tab we have a records group. In the records group, go to delete, click on delete. Now again one dialog box is coming for delete. Now if you click on yes, now see the record of Divyanshi Verma is also no more here in the student table. Now if you want to delete the record of Rishabh, suppose you want to delete the record of Rishabh, so here select the record. Now same here in the records group of the home tab, click on the delete option. Now again click on yes. Now the record is deleted. Now the record is deleted. Again, if you want to delete the record of Manjeet, why? No, not attending the class every day. Now, so click on the delete option in the records group of the home tab. Now click on this. Again, it is asking yes or no. If you click no, now see the record is not deleted. Now click on delete. Now yes, the record is deleted. So in this way we can delete a record. In this way we can delete the record. In this way we can delete the records. In this way we can delete the record. Now our next topic of today is, our next agenda of the today is sorting of records in a table. Sorting of records in a table. Sorting of records in a table. So this is our next topic. Now the next topic is here. The next topic is sorting of records in a table. Sorting of records in a table is the next topic. Our next topic is sorting of records in a table. Now practically अब इसको भी बता रहा है. See, this one is the student table. और student table में ये हम how many records are there? 1, 2, 3, 4, 5 records are there. Now these are the 5 records, but these records are not in sorted order. ये record जो है sorted order में नहीं है, but I want the records to be in sorted order based on certain columns. So see here, student name के basis पे इसको sort करना चाहते हैं. So select the student name column and in the home tab, we have a sort and filter group. Within the sort and filter group, we have two options: ascending and descending. Ascending and descending. Ascending and descending. So here click on ascending. Now see the records are sorted. First one is Kamya, record of Kamya, then Pulkit, then Riyaraj, then Shivani, then Yuvraj. Okay, you can also sort on the basis of admission number. Now click here, admission number. Now the record is on the basis of admission number. Riyaraj is first, then Yuvraj is first, then this. Now you can also sort on the basis of class. अगर class के basis पे करेंगे तो first record of Shivani आ जाएगा. Now select this one, ascending. Now see the first record is of Shivani. You can also select on the we can also sort on the basis of date of admission. Date of admission के basis पे भी हम लोग sort कर सकते हैं. So date of admission के basis पे करेंगे ascending order में. See here, Riyaraj का first record हो गया. So we can, so this is what sorting of the records. Record को मैंने sort किया on the basis of ascending order. In the same way, you can also sort the record on the basis of descending order. Now select the class, student name, click on descending. Now see, first one is Yuvraj. Record of Yuvraj is coming, then Shivani, then Riya, then Pulkit, Kamya. So this is descending order. Y is first, then S, then R, then P. You can also sort on the basis of admission number. Select the column. Now here in the home tab, we have sort and filter group. Within the sort and filter group, we have a descending option. Click on this. Now see, 41, that is Shivani, record of Shivani. Then 32 admission number, then 31, 21 this. So the record is sorted. If you want to sort the record on the basis of class column, select the column, click on descending. Now the records are sorted. Now the first record is of Yuvraj, Riyaraj, Kamya, Pulkit, Shivani. So why here? Because the records are sorted on the basis of class. So this is all about sorting. This is all about sorting of records in MS Access. Now our next topic is modifying the table design. Our next topic is modifying the design of a table.
modifying next topic is modifying the design of a table. Modifying the table design. Modifying the table design. Modifying the table design. Modifying the table design. Now this is our next topic. So practically this also we will practically अब इसको भी मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को कैसे टेबल के डिजाइन को हम लोग चेंज करेंगे. Now our next topic is modifying the table design. So modifying the table design. Now see, this one is student table. Now design means what? You already have discussed. We have two view of a table. So design view, data sheet view. Data sheet view में क्या होता है? डेटा होता है, टेबल के अंदर डेटा होता है. एंड दिस वन इज डिजाइन व्यू इज स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल. टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेबल में कितने कॉलम होंगे, कितने फील्ड होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल. डिजाइन व्यू मीन्स टेबल के अंदर कितने फील्ड होंगे और किस फील्ड का क्या डेटा टाइप होगा, डिजाइन व्यू का मतलब यही होता है. मॉडिफाइंग द टेबल डिजाइन, टेबल के डिजाइन को मॉडिफाई करने का मतलब हुआ कि चेंज इन द टेबल स्ट्रक्चर. टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना मीन्स कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना हो सकता है. मॉडिफाइंग द टेबल डिजाइन मीन्स आइदर यू कैन एडिशन और either add one or more fields in the table or so. Modify means different types of modification will be there. So either we can add one field or remove one or more fields in the table. So अगर हम लोग टेबल सपोज ये प्रैक्टिकल देखिए. सो डिजाइन व्यू ऑफ द टेबल में राइट क्लिक किए, हियर इज द डिजाइन, दिस इज द डिजाइन व्यू. डिजाइन व्यू मींस स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल और टॉपिक क्या है, मॉडिफाइंग द टेबल डिजाइन. सो दिस इज व्हाट डिजाइन ऑफ द टेबल. और मॉडिफाई मींस हियर वी हैव 4 फील्ड्स. आइदर यू कैन adding one or more fields in the table is also modification in the table design. और एक one or more row remove करना, one or more column को remove करना, remove one or more fields in the table is also modifying the design only. और changing the data type the data type of any column, any field of a table. Changing the data type of any field of a table. Changing the data type of any field of a table is also called as modifying the table design. So design modify करने का मतलब ये हमारे पास टेबल का डिजाइन है, इसमें एक फील्ड ऐड करना या एक फील्ड को रिमूव करना या फील्ड के एग्जिस्टिंग जो फील्ड है, दीज आर व्हाट एग्जिस्टिंग फील्ड में एक किसी भी डेटा टाइप को चेंज करना. क्या होता है, मॉडिफाइंग द टेबल. नाउ सो अब हम लोग प्रैक्टिकली एक एक करके दिखा रहा है. आइदर ऐड वन और मोर फील्ड्स इन द टेबल. सो फर्स्ट वन इज मॉडिफाइंग द टेबल. यही 3 तरह का मॉडिफिकेशन हो सकता है टेबल में. So first one is either add one or more fields in the table. So एक field हम add कर रहे हैं. So this is one modification. तो practically see, this one is the table. See here, table design view में open किया. These are the number of fields in the table. Table में existing जो student table है, इसमें हमारे पास 4 field है. अगर इसको हम लोग data sheet view में देखें तो first column, second column, third column, fourth column. 4 columns are there, means 4 fields are there, but I want to modify. This one is design view, 4 fields are there, 1 field more I want to add. So see here, मैं एक अलग डेटा टाइप आपको बताऊंगा. So this one is address. Now select this.
So address you can mention as a text data type. Text data type. अब देखिए आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, सो इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. सी एड्रेस डेटा टाइप, और इसको समझिए जो मैं बताने जा रहा हूं. अभी इसको हटाते हैं, आपको मैं ये बता रहा हूं, उसके बाद बताएंगे. सी हियर इज अ स्टूडेंट नेम, हियर इज अ स्टूडेंट नेम फील्ड, डेटा टाइप ऑफ द स्टूडेंट इज टेक्स्ट. अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो स्टूडेंट नेम जो फील्ड है ये इसका डेटा टाइप टेक्स्ट है. एंड हियर सी फील्ड साइज मीन्स इट कैन, दिस स्टूडेंट नेम फील्ड कैन स्टोर डेटा up to 255 character. 255 character. Here is 255. Now see here, I am changing this one to 10. 10 here मैंने इसको चेंज करके कर दिया, ठीक है ना. अब इसको मैं 10 कर दिया है. Now see here, क्या मैं बताया था, either add one or more fields in a table or remove the one or more fields in a table or changing the data type of any field of a table. Changing the data type of any field of a table or changing one more is changing the field properties. Changing the field properties. That is changing the field properties. Field properties. So this is also modifying the table design only. Now see here the data field name is student, data type is text, and this field has a properties. ये field है इसका, this field has lot of properties, field size, format, input, mask, caption, default value, all these things. ये जितने भी है ना, in the coming sessions I will explain everything, don't worry for that. So one of the properties of this text data type, ये जो text data type है उसका एक property है field size. अब field size मैंने 10 कर दिया. पहले यहाँ पे डिफॉल्ट जो होता है इसका 255 होता है. इस कहने का मतलब अगर कोई आप फील्ड जब लीजिएगा तो ये उसमें आप 255 कैरेक्टर्स तक ही इनपुट कर सकते हैं. ऐसे करके टोटल मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स तक ही कर सकते हैं. अब मैं इसको प्रैक्टिकली बताऊंगा तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा. देखिए मैंने इसको 10 कर दिया, 10 कैरेक्टर कर दिया, फील्ड साइज 10. अब 10 कर दिया. अब मैं यहाँ पे सेव कर दिया, इसको सेव कर दिया टेबल के. नाउ इट इज आस्किंग सम डेटा में बी लॉस्ट. क्लिक ऑन यस, नो प्रॉब्लम. नाउ क्लिक ऑन सेव. ऑलरेडी मैंने सेव कर दिया. टेबल के डिजाइन में मैंने मॉडिफाई कर दिया. सी हियर मॉडिफाइंग द टेबल डिजाइन. नाउ चेंजिंग द फील्ड प्रॉपर्टीज. ये मेरे पास फील्ड था स्टूडेंट नेम, इसका डेटा टाइप टेक्स्ट था, इसके फील्ड ये फील्ड प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख रहे हैं, स्टूडेंट नेम का ये फील्ड प्रॉपर्टीज है. एडमिशन नंबर में गए, सी हियर द फील्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एडमिशन नंबर चेंज हो गया क्योंकि डेटा टाइप इसका क्या है, नंबर है. इसके अगर प्रॉपर्टीज में गए, सी हियर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेट ऑफ एडमिशन फील्ड इज चेंज. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास इज नंबर डेटा टाइप, इसका फील्ड प्रॉपर्टीज चेंज हो गया. तो फील्ड का प्रॉपर्टीज जो है डिपेंड करता है डेटा टाइप पे. सो हियर द डेटा टाइप ऑफ स्टूडेंट नेम फील्ड इज टेक्स्ट डेटा टाइप. वन ऑफ द फील्ड साइज इज 10. इसके फील्ड के साइज को मैंने 10 कर दिया. अब ये करने के बाद क्या होगा वो मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को. सी हियर, अब इसको मैं सेव कर दिया हूं और टेबल को मैंने क्लोज कर दिया. डिजाइन व्यू में टेबल था, इसको क्लोज कर दिया. अब इसको डेटा शीट व्यू पे ओपन कर रहे हैं. सी हियर, अब मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करने जा रहा हूँ. रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहा हूँ. स्टूडेंट नेम जो डेटा टाइप है, स्टूडेंट नेम जो फील्ड है, इस फील्ड का डेटा टाइप क्या है, इस फील्ड का डेटा टाइप टेक्स्ट है. और इसका प्रॉपर्टीज क्या था, मैंने फील्ड साइज जो था उसको मैंने 10 रखा. फील्ड साइज 10 रखा. मतलब अगर मैं स्टूडेंट का नाम अगर सपोज रखते हैं निहारिका कुमारी. सो सी हियर हाउ मेनी टेक्स्ट आर देयर,
कैरेक्टर्स आर देयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So this is up to here only it can store. ये जो 2 है ना ये स्टोर नहीं कर पाएगा. सी या अगर मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड करना चाहूँ निहारिका स्पेस कुमारी, देख रहे हैं ना, जैसे ही अब मैं कुछ भी एंटर कर रहा हूं ना कीबोर्ड में नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम 10 ही कैरेक्टर्स को 1 NI 2 H3 A4 R5 6 7 8 and one space is also 9 and then K, that is 10. After that you cannot enter anything. इसके बाद आप लोग कुछ भी एंटर नहीं कर सकते हैं कीबोर्ड में. देखिए अब ये अलाउ ही नहीं करेगा. वाई? बिकॉज द डेटा टाइप इसका जब मैं सेट किया था तो टेक्स्ट डेटा टाइप था. टेक्स्ट डेटा टाइप स्टूडेंट नेम जो फील्ड है इसका डेटा टाइप मैंने टेक्स्ट लिया था और इसका फील्ड साइज मैंने 10 किया था. तो मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स वी कैन राइट इन द स्टूडेंट नेम फील्ड. In the student name field we can maximum write 10 characters. Okay, so उससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं. Now admission is suppose 24. Now date of admission is suppose 11. Now class is suppose 4. So and here is the record. ये रिकॉर्ड था, इस पे न्यू कर दिया, ये सेव हो गया. तो निहारिका कोई भी हम लोग रिकॉर्ड. अब इसके मैं डिजाइन को फिर से चेंज कर रहा हूँ. सी या क्लोज किया, ओपन द टेबल इन डिजाइन व्यू. हियर इज ऑप्शन स्टूडेंट नेम, टेक्स्ट डेटा टाइप है और इसके रिकॉर्ड फील्ड साइज को मैं सपोज 3 कर दी, सपोज मैंने 5 कर दिया. ठीक है, सेव किया, टेबल का डिजाइन चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया. नाउ डबल क्लिक किया, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट 5 कैरेक्टर से ज्यादा अगर कोई भी लिखिएगा, मंजीत लिखते हैं MANJ, जे तक टाइप हुआ, ई भी टाइप हुआ, फिर अब ई टाइप करें या कुछ भी टाइप करें नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इट विल अलाउ ओनली 5 कैरेक्टर्स. ओनली 5 कैरेक्टर्स आर अलाउड. ओके, सो MANJE तक ही हो पाएगा इसमें, क्योंकि डेटा टाइप मैंने इसको 10 ही लिया. सी ईयर एडमिशन नंबर 81 कर दिया. डेट ऑफ एडमिशन मैंने इसको 20 कर दिया और क्लास इज 9. सो आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस फील्ड साइज. फील्ड साइज का मतलब समझने का हो गया ना. हियर तो मैक्सिमम अगर हम बात करें, इसको मैं क्लोज करता हूं. डिफॉल्ट हियर डिजाइन व्यू में जाएंगे तो मैक्सिमम इट कैन स्टोर 255 कैरेक्टर. 255 कैरेक्टर ही ये होता है. ठीक है ना. मैक्सिमम जो टेक्स्ट डेटा टाइप है, टेक्स्ट डेटा टाइप मैक्सिमम ये फील्ड साइज है 255. 255 इज द मैक्सिमम है. द डेटा टाइप टेक्स्ट जो डेटा टाइप होता है मैक्सिमम ये 255 कैरेक्टर को ही स्टोर कर सकता है, इससे ज्यादा ये नहीं स्टोर कर सकता है. अभी 255 वापस कर दिया, सेव कर दिया. सो वी हैव वन प्रॉब्लम इन टेक्स्ट डेटा टाइप में. एक प्रॉब्लम है, मैक्सिमम ये अगर हम कोई चेंज नहीं करें तो डिफॉल्ट ये 255 फील्ड साइज इसका होता है. फील्ड साइज कितना होता है? 255. डिफॉल्ट फील्ड साइज इन केस ऑफ टेक्स्ट डेटा टाइप. टेक्स्ट डेटा टाइप का डिफॉल्ट फील्ड साइज क्या होता है? डिफॉल्ट फील्ड साइज इज 255 कैरेक्टर. 255 कैरेक्टर. अब मान लीजिए हमें यहाँ पे स्टूडेंट का नाम 255 कैरेक्टर तक तो हो जाएगा. मान लीजिए अगर मुझे एड्रेस ऐड करना है इन द स्टूडेंट टेबल. ये क्या है? स्टूडेंट टेबल है, इसमें मुझे एक कॉलम ऐड करना है, एक फील्ड ऐड करना है. ठीक है ना. तो ये क्या था अभी तक मैंने जो बताया था, ये चेंजिंग द फील्ड प्रॉपर्टीज बताया. अब देखिए ये इसका मतलब क्या है? मॉडिफाई करें टेबल के डिजाइन को. Now adding one or more fields in the table. Now my requirement is I want to add one address column. Address column. अगर एड्रेस कॉलम का डेटा टाइप मैं टेक्स्ट लेता हूं तो मैक्सिमम सी डिफॉल्ट साइज इज 255. इससे ज्यादा नहीं हो सकता. अगर हम लोग एड्रेस किसी का लिखे और 255 कैरेक्टर से ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा? ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा एड्रेस, टोटल एड्रेस नहीं लिख पाएगा.
सो टेक्स्ट डेटा टाइप में ये रिस्ट्रिक्शन है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक अनदर डेटा टाइप है मेमो डेटा टाइप। मेमो डेटा टाइप, मेमो डेटा टाइप जो है, जो मेमो डेटा टाइप भी टेक्स्ट टाइप के लिए ही है। मेमो डेटा टाइप, मेमो डेटा टाइप में भी इन दिस डेटा टाइप, टेक्स्ट डेटा टाइप इसलिए होता है स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है, स्ट्रिंग वैल्यू को, स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए होता है। लाइक सचिन, लाइक रमेश, लाइक जहीर, लाइक सुशील, सो दीज आर वाज टेक्स्ट डेटा। लाइक माही, लाइक अजीत, सो दीज आर वाज टेक्स्ट डेटा। और टेक्स्ट डेटा टाइप जो होता है स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करता है, और मैक्सिमम इट कैन स्टोर, ये मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम इट कैन स्टोर, मैक्सिमम इट कैन स्टोर, मैक्सिमम इट कैन स्टोर 255 कैरेक्टर्स इन केस ऑफ मेमो डेटा टाइप। मेमो डेटा टाइप क्या होता है? इट इज ऑल्सो यूज फॉर स्टोरिंग स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। लाइक स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा है, जैसे जो जिस तरह का टेक्स्ट डेटा स्टोर करते हैं, सेम मेमो डेटा टाइप भी क्या होता है, स्ट्रिंग को ही स्टोर करता है। लाइक दिस ओनली सचिन, सेम दिस होल इट कैन ऑल्सो स्टोर, बट it can also store, it can store maximum it can store 65536, means these 65,536 कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। ये कैरेक्टर, these many number of characters it can store. ओके, सो अगर आपको अगर नेम स्टोर करना है, फर्स्ट नेम, तो डेटा टाइप टेक्स्ट लेंगे, 255 कैरेक्टर तक में आ जाएगा। सुशील फर्स्ट नेम, सचिन फर्स्ट नेम 255 कैरेक्टर के अंदर आ जाएगा। अगर हम लोग कुमार मिडिल नेम लेना है तो डेटा टाइप टेक्स्ट लेंगे, लास्ट नेम लेना है तो डेटा टाइप टेक्स्ट लेंगे। बट इफ यू वांट टू स्टोर द एड्रेस maybe in some cases the address may not be 255 कैरेक्टर के अंदर नहीं स्टोर हो पाएगा। So it is better to take memo data type rather than text data type. text data type के जगह हम लोग memo data type लेंगे एड्रेस को स्टोर करने के लिए। Okay, so here I am taking one field एड्रेस, जिसका डेटा टाइप क्या ले रहा है, मेमो डेटा टाइप ले रहा है। मेमो डेटा टाइप का क्या होता है, मेमो डेटा टाइप इज ऑल्सो यूज फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट डेटा ओनली, इट इज ऑल्सो यूज फॉर स्टोरिंग स्ट्रिंग डेटा ओनली। बट द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड मेमो डेटा टाइप में क्या है कि मेमो डेटा टाइप कैन स्टोर these many number of characters, 65,536 कैरेक्टर्स को ये स्टोर कर सकता है। बट टेक्स्ट डेटा टाइप कैन स्टोर 255 data only. Now see the data type is memo. Now memo data type ले लिया, these are what the character properties of the memo data type field. This is what memo is a data type of the address field. अब ये जो field है एड्रेस, इसका प्रॉपर्टीज ये सब है, मीन्स मेमो डेटा टाइप का इतना ये प्रॉपर्टीज है। These I will discuss in the coming sessions. Coming sessions में all the properties of all the data type I will discuss. ओके, नाउ क्लिक ऑन सेव, इसको क्लोज किए। नाउ सी हियर स्टूडेंट टेबल ओपन किए, अब हमारे पास एक एड्रेस फील्ड ऐड हो गया, सो दिस इज व्हाट, दिस इज वन ऑफ द मोड, आइदर ऐड वन और मोर फील्ड्स इन द टेबल, तो इसको क्या बोलते हैं, वी आर मॉडिफाइंग द टेबल डिजाइन। टेबल के डिजाइन को अभी देखिएगा, हियर द डिजाइन ऑफ द टेबल इज what modified, one of the field is added, so we have modified the design of the table के डिजाइन को हमने मॉडिफाई कर दिया। now अगर हम लोग यहाँ पे देखें, this data sheet view one more column is added, means we have changed the design of the table,
सो दिस इज व्हाट एड्रेस फील्ड। ना अगर हमको अब रिकॉर्ड ऐड करना है, वन रिकॉर्ड आई वांट टू ऐड, नाउ क्लिक हियर, सपोज द नेम इज सपोज सुशील कुमार पांडे, सुशील कुमार पांडे। So now here we are able to add, why Sushil Kumar Pandey? Because I have changed the स्टूडेंट नेम फील्ड का डेटा टाइप जो था उसके फील्ड प्रॉपर्टीज को मैंने चेंज कर दिया, 255 कैरेक्टर हो गया, ठीक है ना, इसलिए सुशील कुमार पांडे आई एम एबल टू राइट। नाउ सी हियर एडमिशन नंबर इज 73, नाउ डेट ऑफ एडमिशन इज सपोज 13, हियर 2019, now here the class is suppose 10, now address here is suppose Godhana Road Ara. Now address I have added here Godhana Road Ara. Now here click on new, now this record is added, okay। so address data type का एड्रेस जो कॉलम है, एड्रेस जो फील्ड है उसका डेटा टाइप क्या लिए, मेमो लिए। क्यों लिए? बिकॉज द इट कैन स्टोर 65,536 कैरेक्टर, दीज मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इट कैन स्टोर, दीज मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इट कैन स्टोर। हम लोग एड्रेस के लिए भी टेक्स्ट डेटा टाइप ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी का एड्रेस जो है मोर देन 255 कैरेक्टर है, उस केस में हम लोग वो जो वैल्यू जो है नहीं होल्ड कर पाएगा, इसलिए हम लोग मेमो डेटा टाइप को लिए। मेमो डेटा टाइप कैन स्टोर मोर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इट कैन स्टोर। सो टिल नाउ आई हैव डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स ऑल्सो। अभी तक मैंने क्या क्या डिस्कस कर दिया है? आई हैव डिस्कस द टेक्स्ट डेटा टाइप। Just wait, one more point is here. So modifying of the table means, modifying the table design means either add one or more fields. So I have added one field, that is address field. So this is what modifying the table design. I have changed the field properties, means मैंने see here मैं क्या किया था, अगर हम लोग इसको डिजाइन व्यू में ओपन करें तो here स्टूडेंट नेम के टेक्स्ट डेटा टाइप जो था इसके फील्ड प्रॉपर्टीज को चेंज किया था। व्हाट इज दिस? मॉडिफाइंग द टेबल डिजाइन। Now another one is change the data type of any field of a table. Data type of a field of a table. Changing the data type of any field of a table. So this and this two topic is still pending. Now remove one or more fields in a table. Suppose this field is there called class. Now I am removing this. Now select this, delete rows. Now okay. And here save. Now close this one. Now what is this? No more class field, class column itself, this field is gone, no more here. Design में गया, see here how many columns are there, class column is not there. What is this? Modifying the design of the table. इसको भी क्या कर लिए, remove कर दिए, क्या चीज, field को in the table. So this is what modifying the table design. table के डिजाइन को मैंने modify कर दिया। Now change the data type of any field of a table. Now see here, so this is what date of admission. Now we can just wait, here admission number is there, data type is what, number, so one important point is here, बहुत ही आप लोग कंसंट्रेट कीजिए here. See here admission number is there, data type is नंबर डेटा टाइप है। अब आप लोग देखिएगा कि एडमिशन नंबर है, डेटा टाइप नंबर है। अब इसको मैं क्लोज कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर अगर मैं एडमिशन नंबर मंजीत है, ठीक है ना, अब यहां पे मैं सपोज वन रिकॉर्ड ऐड करता हूं, महेंद्र सिंह धोनी, ना हियर एडमिशन नंबर। अब देखिए एडमिशन नंबर को मुझे खुद ही लिखना पड़ रहा है, मैं खुद टाइप कर रहा हूं 89। हियर इज डेट ऑफ एडमिशन। ना यहाँ पे न्यू में गया, एक रिकॉर्ड ऐड हो गया, क्लोज किए। अब देखिए
मैं एक आपको डेटा टाइप बताने जा रहा हूं। सी हियर, दिस वन इज व्हाट, चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ एनी फील्ड ऑफ अ टेबल। दिस इज द टॉपिक। नाउ एडमिशन नंबर इज द फील्ड नेम। नाउ डेटा टाइप ऑफ एडमिशन नंबर इज नंबर। नाउ आई एम चेंजिंग द डेटा टाइप टू ऑटो नंबर। इसके डेटा टाइप नंबर को ऑटो नंबर कर दिया। नाउ हियर क्लिक ऑन ओके। Once you enter the data in a table, okay, now it is saying this cannot be performed। जब अगर मैं टेबल में डेटा एंटर कर दिया हूं तो नहीं हो सकता है, यहाँ पे ये बोल रहा है। सो ओके, सो जस्ट वेट। क्या करना पड़ेगा हमको, टेबल के अंदर जो डेटा है ना उसको डिलीट कर देना है, उसके बाद करेंगे तो हो जाएगा। सी नाउ सी हियर, सो दिस वन इज स्टूडेंट टेबल। इसको मैंने ओपन किया डिजाइन भी में। हियर इज द एडमिशन नंबर। द डेटा टाइप ऑफ एडमिशन नंबर इज, डेटा टाइप ऑफ एडमिशन नंबर इज नंबर। नाउ आई वांट टू चेंज दिस डेटा टाइप, ऑटो नंबर मैंने कर दिया। ऑटो नंबर डेटा टाइप, द डेटा टाइप आई हैव चेंज इनटू ऑटो नंबर। अब मैंने ऑटो नंबर इस डेटा टाइप कर दिया। ऑटो नंबर डेटा टाइप क्या होता है अभी देखिए। तो मैंने डेटा टाइप चेंज करके ऑटो नंबर कर दिया। नाउ क्लिक ऑन सेव। नाउ क्लोज दिस वन। नाउ क्लिक ऑन दिस। नाउ स्टूडेंट नंबर आप एंटर किए। ऑटो नंबर डेटा टाइप मैंने एडमिशन नंबर को कर दिया। सी स्टूडेंट नेम इज सुशील, SUSHIL स्पेस कुमार स्पेस पांडे। ना हियर डेटा स्टूडेंट नेम ही लिखा, देखिए ऑटोमेटिकली एडमिशन नंबर आ गया 1। मुझे नहीं लिखना है, मुझे एंटर नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। ठीक है ना। ऑटो नंबर मीन्स ऑटोमेटिकली नंबर विल बी इंसर्टेड, आपको इंसर्ट नहीं करना है। डेट ऑफ एडमिशन 6, एड्रेस गोड़ना रोड आ रहा। नाउ नेक्स्ट वन इज सपोज महेंद्र सिंह धोनी। Automatically admission number is 2. I have not entered. Date of admission is 12. Address is Harmu, Ranchi. Now Mahendra Singh, Sachin Ramesh Tendulkar. If you see here, admission number is automatically coming, no need to write. So what is the meaning of auto data type? I think everyone is clear. Here is Mumbai. Here if you write suppose Rahul Dravid, automatically admission number is coming, date of admission is 5. This is Bangalore. Now here Saurav Ganguly. Automatically admission number is coming or not? No need to write anything here in the admission number. This is West Bengal, this is Kolkata. Okay, so 5 this record is added, save कर दिए। Okay, so this is what, changing the data type। मैंने डेटा टाइप को क्या किया, चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ एनी फील्ड ऑफ अ टेबल, मैंने डेटा टाइप को चेंज कर दिया। दिस इज ऑल्सो मॉडिफाइंग द टेबल डिजाइन ओनली। दैट्स ऑल फॉर टुडे। In the next class, remaining topics I will discuss. Thank you.